Hello dear students, today we will start the 6th chapter, that is electrolysis, and the syllabus for this chapter remains unchanged. Nothing has been omitted or deleted from this chapter. After finishing this chapter, you will be able to define what are electrolytes and non-electrolytes. Then you will understand more about the substance, how they contains only molecule or only ions or both molecules and ions, like we studied in acid, bases and salts. And then you will be understanding the strong and weak electrolyte as well as non-electrolytes. With relation to electrolysis, these concepts are very important. So, you will kind of learn the relationship between electrolysis and cation and ion oxidation and reduction. So, first we will see the definition of electrolysis. We will understand the concept. The word electrolysis is made up of two words, that is electro and lysis, whereas electro means flow of electrons or electricity and lysis means breaking down or separating. Okay. So, whenever you pass electricity to certain substances, a chemical change happens. Now, you must have learnt in previous classes that whenever there is a chemical change, it is brought about by some factors like close contact or sometimes with light energy. But here electrolysis is a chemical change which is brought about in the presence of flow of electrons or electricity, because many substances allow electricity to pass through them. Okay. And those substances which allow the electricity to pass, they undergo some chemical change, and when they undergo chemical change, reactions happens, and that is studied under electrolysis. You know that metals like copper, aluminium, iron and other metals, whether they are in solid state or they are in molten state, they allow the electric current to pass through them, but विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज. अगर सॉलिड स्टेट में है कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन, ये सारे जितने भी इनके अलॉयज़ हैं, तो वो अपने थ्रू करंट तो पास करते हैं लेकिन कोई केमिकल चेंज नहीं होता. नॉन मेटल्स जो हैं वो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट. तो इसीलिए हम मेटल्स को और उनके अलॉयज़ को बोलते हैं कंडक्टर्स, एंड वी कॉल नॉन मेटल्स नॉन कंडक्टर्स और वी कॉल देम इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. This conduction of current due to flow of electrons, जो conduction हो रहा है current का, it is by the flow of electrons, and insulators do not possess mobile electrons. तो ये बहुत important concept है, आपको समझना चाहिए कि जो ये conduction हो रहा है current का, ये due to flow of electrons है और insulators के पास क्या नहीं होते हैं, मोबाइल या मूविंग इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं. तो डेफिनेशन देखेंगे. केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. देन अभी मैंने आपको कंडक्टर बता दिया कि कौन होते हैं कंडक्टर जिनमें से करंट फ्लो हो जाता है, लेकिन दो तरह के कंडक्टर्स हो गए. एक तो अभी जो मैंने बताया आपको मेटालिक कंडक्टर. जो मेटालिक कंडक्टर हैं उसमें क्या हो रहा है, जैसे कि मेटल्स हैं, आप मेटल्स में जब मेटल्स में से करंट पास करते हैं तो वो बिना किसी चेंज के, दे डो नॉट गो अंडरगो केमिकल चेंज, दे पास द करंट थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज. तो यहाँ पे ये वो हो जाएंगे आपके मेटालिक कंडक्टर. लेकिन जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, जब उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो सम कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन एक्वस स्टेट और इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. तो और क्या करते हैं, जैसे ही वो करंट पास करते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं. तो इस तरह के जो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट पास होते ही वो डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और उस कंडक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन. ठीक है. तो जो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो अपने एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में करंट को अपने अंदर से फ्लो करने देते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं, नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं. तो दो तरह के कंडक्टर्स हो गए आपके, एक तो मेटालिक कंडक्टर्स और एक हो गए आपके इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. तो लेट्स सी द difference between them.
तो सबसे पहले मेटालिक कंडक्टर में वन वे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, तो वो तो मेटालिक कंडक्टर हो गए। एंड देन नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की तरफ फ्लो कर रहा है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में करंट का जो फ्लो है वो दो स्ट्रीम में होता है, वन पॉजिटिव कैटायंस फ्लोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव कैथोड एंड द अदर ऑफ नेगेटिव एनायंस फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एनोड। तो कैटायन टू कैथोड, एनायन टू एनोड। इसको कैसे याद रखेंगे? कैट गोज टू कैट और एन गोज टू एन, ठीक है। तो कैटायंस विल गो टू कैथोड, एनायंस विल गो टू एनोड। तो टू वे होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में। एक एग्जाम्पल के तरह से ले लेते हैं, मेटालिक कंडक्टर का यहाँ एग्जाम्पल हम ले लेंगे CU वायर, दैट इज कॉपर वायर, और यहाँ पे हम ले लेंगे इसको CuSO4 सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल से भी आप समझते जाएंगे। और यहाँ पे इसको याद रखना, कैट टू कैट, एन टू एन, कैट गोज टू कैट, एन गोज टू एन। फिर मेटालिक कंडक्टर में देखेंगे, मेटालिक कंडक्टिविटी इज द property of metals and alloys and it happens both in solid and liquid। लिक्विड में भी होता है और सॉलिड स्टेट में भी होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स जो हैं वो अपनी जो कंडक्शन है वो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में या मोल्टन, ओनली इन एक्वस और मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी किसकी जैसे मैंने बताया अभी कि मेटालिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, यानी जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टी है ये आयनिक कंपाउंड्स की। और ये किसकी है? ये है मेटल्स की। नो चेंज अकर्स, कोई फिजिकल चेंज है यहाँ पे, नो चेंज ऑफ फॉर्म और इन कॉम्पोजिशन अकर्स ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड एट द इलेक्ट्रोड्स एंड दिस इन्वॉल्व्स केमिकल चेंज। ये फिजिकल है और ये केमिकल चेंज है। देन करंट कैरिंग पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं करंट कैरिंग पार्टिकल्स, और यहाँ पे जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स हैं वो आयंस हैं, ये भी याद रखेंगे, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। चाहे अपने मोल्टन स्टेट में या एक्वस स्टेट में जो करंट पास करते हैं उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, ठीक। या तो वो मोल्टन सॉल्ट्स होते हैं या सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स होते हैं इन वाटर, या सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स एंड एल्कलीज होते हैं, तो ये सारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे आपके? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एसिड्स में आपके सारे एसिड्स H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl। देन बेसिस होंगे आपके जितने भी NaOH, KOH, NH4OH, मतलब मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स, है ना। एंड सॉल्ट्स फॉर एग्जाम्पल NaCl, CuSO4, लेड ब्रोमाइड एक्सेट्रा, ये हैं सम एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स बेस्ड ऑन देयर कंडक्टिविटी एंड एबिलिटी टू डिसोशिएट इनटू ions. Dissociate means break down into ions. A strong electrolyte and weak electrolyte. So let us take them one by one. So let's see the difference between strong and weak electrolyte. Strong electrolyte which allows a large amount of electricity, and electrolytes which allow small amount, मतलब allow दोनों कर रहे हैं लेकिन एक थोड़ा large amount में कर रहा है, एक small amount में कर रहा है। ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको हम गुड कंडक्टर्स कहते हैं, और जबकि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को थोड़ा पुअर कंडक्टर कहते हैं, लेकिन इंसुलेटर नहीं कहते हैं इनको, ये याद रखिएगा। दीज आर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली डिसोशिएटेड एंड फ्यूज्ड और एक्वस सॉल्यूशन स्टेट। कम्प्लीटली डिसोशिएट मतलब आयंस में ब्रेक डाउन करना, जो हमने एसिड बेसिस में पढ़ा था कि कंप्लीट ब्रेक डाउन, 100% ब्रेक डाउन इनटू आयंस हो जाता है, तो उसको कम्प्लीटली डिसोशिएट कहते हैं। और यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन होता है, मतलब कि कुछ आयंस रह जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स भी रह जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फ्री मोबाइल आयंस हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स भी हैं और आयंस भी है। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं एसिड बेसिस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ बहुत अच्छे से। इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट गो बैक एंड सर्च द वीडियो ऑन एसिड बेसिस एंड सी।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अलाउज दैट बल्ब टू ग्लो ब्राइटली। अगर आप एक बल्ब लगा देंगे, इसके पूरे जो सेटअप आपने बनाया है उसमें अगर आप एक बल्ब लगा देंगे तो वहाँ पे वो जो बल्ब है वो बहुत अच्छे से ग्लो करेगा, और जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में थोड़ा डिम ग्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट जितनी गुड कंडक्टर्स में हो रही है. Let's see the example. All the strong acids, now remember, all the strong acids are strong electrolyte. All the strong bases are strong electrolytes. All the salts are strong electrolyte. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सॉल्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम ये देखेंगे कि अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड से कोई सॉल्ट बना है तो वो स्ट्रॉन्ग होगा. जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल देखते हैं. NaCl किस चीज़ से बना है? NaOH से बना है, यानी स्ट्रॉन्ग बेस प्लस HCl से बना है जो कि है स्ट्रॉन्ग एसिड. दोनों स्ट्रॉन्ग आ गए, इनसे मिलके बना है NaCl, तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. लेकिन ये सब किस स्टेट में? मोल्टन और एक्वस स्टेट में. याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल्टन और एक्वस स्टेट में. फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने बता दिया था कि इसमें कौन कौन से होंगे. वीक एसिड्स, जितने भी हमारे वीक एसिड्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. कार्बोनिक एसिड, एस्टिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स जितने भी हैं हमारे, ऑक्जेलिक एसिड. देन बेस, जो वीक बेस हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेसिस जो है हमारे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे. और ऐसे देन कम्स नॉन इलेक्ट्रोलाइट. कौन है नॉन इलेक्ट्रोलाइट? इट इज़ अ कंपाउंड विच neither in solid or in aqueous state or in molten state allows the electric current to pass through it. किसी भी स्टेट में, ना सॉल्यूशन में, ना मोल्टन स्टेट में, ना सॉलिड स्टेट में, किसी भी स्टेट में दे डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, एंड दैट इज़ वाई दे आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड दे डू नॉट डिकम्पोज और ब्रेक डाउन एट दी इलेक्ट्रोड्स. नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ नहीं होता इनमें. अगर आप इनमें करंट पास करेंगे कोई चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल, डिस्टिल्ड वाटर, जो हमारा प्योर वाटर है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. अल्कोहल, शुगर, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं. दे डू नॉट हैव आयंस, इनके पास आयंस नहीं होते हैं. इवन अगर आप इनको पानी में डाल भी देंगे तो आयंस नहीं होंगे, सिर्फ मॉलिक्यूल्स होंगे. याद रखेंगे, दे ओनली हैव मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट. तो शुगर को अगर आपने डाला वाटर में तो देयर विल बी वाटर मॉलिक्यूल्स एज वेल एज शुगर मॉलिक्यूल्स, ओनली मॉलिक्यूल्स, नो आयंस विल बी प्रेजेंट. Now the next concept is acid, bases and salt as electrolyte. As you all, whether it is a strong or weak electrolyte, you can tell it on the degree of dissociation. Degree of dissociation, the formula is the number of molecules dissociated upon the total number of molecules multiplied by 100. So this is the formula where you will find out degree of dissociation, and it depends upon whether it is a strong or weak electrolyte, depends upon the degree of dissociation. How many molecules out of total number of molecules are dissociating into ions. Okay. Now one thing which you have to which is very important is that mostly all salts are strong electrolytes, because what they will do whenever you will use those salts, either they will form acidic or basic or neutral solutions after complete dissociation. But only thing is that there are some salts which are volatile, more volatile than the other, and that is why they do not dissociate completely, and they can be considered as weak electrolytes. So मोस्टली जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं. सिर्फ एक्सेप्शन क्या है कि अगर कुछ वोलेटाइल सॉल्ट्स हैं जो कि दूसरे सॉल्ट्स से ज़्यादा वोलेटाइल हैं, वो पूरा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेंगे और इसलिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाए जाएंगे. ठीक है. एग्जाम्पल क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट के? मरकरी एंड अमोनियम कार्बोनेट. जनरली बाकी सारे ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. कई बार आप ऑन द नेट ऑल्सो यू विल सी दैट समवेयर इट इज़ रिटन दैट अमोनियम कार्बोनेट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. तो काफ़ी कन्फ्यूजन रहेगा इसमें कि कौन सा सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है. तो बहुत ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. थोड़ा सा इतना दिमाग में रखना है कि आपके बुक के अकॉर्डिंग यू हैव mercury chloride as the weak electrolyte, ammonium carbonate is a weak electrolyte, आपका lead acetate weak electrolyte दिया हुआ है. जनरली जितने भी सॉल्ट्स हैं वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं. ठीक है. सिर्फ एक बेसिस है, वो है वोलेटाइल होने का, कि अगर वोलेटाइल ये नहीं है बिल्कुल, सॉल्युबिलिटी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ध्यान रखेंगे. अगर सॉल्युबल होगा तो ही इलेक्ट्रोलाइट होगा, नहीं.
एक्चुअली क्या है, जितना भी वो सॉल्युबल है सॉल्ट की जो सॉल्युबिलिटी है, सपोज अगर वो 20% भी सॉल्युबल है और उस 20% जो है वो पूरा पूरा डिसोशिएट हो रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो गया ना. तो solubility is no concept on ranking them as weak electrolyte or strong electrolyte. Only thing is आपका volatile होते हैं कई बार तो वो dissociate complete नहीं हो पाते हैं, तो उन salts को हम weak electrolyte कह देते हैं. Otherwise ऐसे generally सारे salt ही strong electrolyte होते हैं. चलिए ये टेबल है where it shows some example of ionization और electrolytic dissociation of acid bases and salt. सबसे पहले acids में देखेंगे hydrochloric acid में. In hydrochloric acid it will dissociate as H plus ion and Cl negative ion in the aqueous solution. Nitric acid H plus and NO3 that is negative ion. Sulfuric acid में 2H and SO4 सल्फेट आयन में ब्रेक डाउन करेगा. उसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट में एस्टिक एसिड हो गया आपका और फॉर्मिक एसिड हो गया. ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं करेंगे. देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेस में KOH कंप्लीट करेगा, NaOH कंप्लीट करेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट करेगा, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कंप्लीट डिसोशिएट नहीं करेंगे. देन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स में देखेंगे लेड ब्रोमाइड, कॉपर क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट, ये आपके स्ट्रॉन्ग हो गए. और वीक में आपका दिया है अमोनियम कार्बोनेट एंड लेड एसीटेट. तो ये किस तरह से आयंस बनाएंगे वो ये टेबल शो कर रहा है. Okay, so now this is on the screen you can see it's a voltameter which is known as electrolytic cell. You will have a non-conducting vessel here. Cell where electrical energy is converted into chemical energy. That means when electrical energy is given to it, some chemical change happens. And how it is made? You can see a non-conducting vessel. This vessel is made up of something which is non-conducting. It does not conduct electricity, and there are two electrodes. Always remember the anode is the terminal which is connected to the positive terminal. Anode positive है ना, तो anode जो है वो positive इसीलिए है क्योंकि आपने उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है. और कैथोड जो है वो नेगेटिव है, और कैथोड नेगेटिव है क्योंकि उसको आपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया. तो आप कैसे बनाएंगे किसी चीज़ को? कैथोड एनोड सेम सब्सटेंसेस के होते हैं दोनों. कैथोड भी सेम मटेरियल का होता है, एनोड भी सेम मटेरियल का होता है, बट वो कैथोड एनोड बस तब बन जाते हैं जब आप उनको किससे कनेक्ट कर देते हैं, आप टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं. बैटरी में देखा होगा आपने, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. तो द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल बिकम्स एनोड, दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द electrode which is connected to the negative terminal becomes cathode. Okay, तो इस तरीके से हमने इसका सेटअप बना लिया बैटरी का. हमारा कैथोड बन गया, हमारा एनोड बन गया. फिर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया. अब इलेक्ट्रोलाइट आपको पता ही है क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशन है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी. तो अब इसमें हम जो भी बैटरी से जो करंट आता है वो डायरेक्ट करंट होता है, जिसको हम बोलते हैं डीसी करंट. ऑलवेज रिमेंबर, जो बैटरीज़ हैं वो हमेशा डायरेक्ट करंट देती हैं. डायरेक्ट करंट क्या होता है? डायरेक्ट करंट जो होता है वो आपका एक ऐसा करंट होता है जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है. दिस इज़ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, मतलब वहाँ पे जबकि ऑल्टरनेटिंग करंट में टर्मिनल्स चेंज होते रहते हैं. तो जैसे ही डायरेक्ट करंट आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या शुरू हो जाएगा? केमिकल चेंज शुरू हो जाएगा. कैटायंस एनायंस ब्रेक करेंगे और कैट गोज टू कैट, दैट इज़ ये मैंने आपको बताया है. कैटायंस विल गो टू कैथोड और एनायंस विल गो टू एनोड. तो ये आप याद रखेंगे, कैट गोज टू कैट एंड एन गोज टू एट. इस इलेक्ट्रोलाइट में ब्रेक होंगे पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, और उस तरीके से पॉजिटिव आयंस मतलब कैटायंस होते हैं तो कैथोड की तरफ जाएंगे यानी नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और जो नेगेटिव आयंस हैं वो एन आयंस है, तो एन आयंस विल गो टू एनोड जो कि पॉजिटिव है. तो उल्टा होता है. ठीक है, तो इस तरीके से इसका बनाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा. दिस सिंपल इलेक्ट्रोलिटिक सेल और वोल्टामीटर विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. देन कम्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का उल्टा हो गया. यहाँ पे केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. एग्जाम्पल्स आर सिंपल वोल्टेक सेल और डैनियल सेल एक्सेट्रा. एंड देन यू नो द इलेक्ट्रोड्स. अभी भी मैंने आपको बताया था कि जो भी मेटल प्लेट्स या वायर्स, जनरली हम इलेक्ट्रोड्स यूज़ करते हैं मेटल की प्लेट्स या मेटल के वायर्स, या हम यूज़ करते हैं ग्रेफाइट रॉड. ठीक है, ग्रेफाइट आपको पता है कि इट इज़ द ओनली नॉन मेटल विच इज़ अ गुड कंडक्टर. एंड गैस कार्बन रॉड्स, ये सब
हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोड्स के लिए। और ये कब इलेक्ट्रोड बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव कैसे बनता है, नेगेटिव कैसे बनता है, और इसको किस में इमर्ज करते हैं। दे आर इमर्ज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट थ्रू विच द करंट एंटर्स एंड लीव्स द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ओके, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई इलेक्ट्रोड्स की। Okay, so you know how anode is made. The electrode which is connected to the positive terminal of the battery is called anode, and the electrode which is connected to the negative terminal of the battery is called cathode. Anode कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका क्या है। एनोड पे पॉजिटिव है, तो इस तरीके से याद, कभी दो तरीके याद करने, या तो आप याद कर सकते हैं कैट गोज टू कैट, तो कैट आयंस आर पॉजिटिवली चार्ज। हमने आपको याद हो, मैंने ये ट्रिक बताई थी आपको ये कैट आयन की, तो ये पॉजिटिव आयंस होते हैं कैट आयंस, तो दे विल गो टू कैट, और ये जब कैथोड पे जाएंगे तो कैट ऑपोजिट होगा, तो नेगेटिव टर्मिनल। तो एक तरीका तो ये है याद करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं कि एनोड जो है वो ए से शुरू हो रहा है, और ए का मतलब है ऐड, और ऐड का मतलब होता है पॉजिटिव। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी इसको आप याद कर सकते हैं। लेकिन एन आयन क्या है, अ नेगेटिव आयन, ये भी तरीका याद बताया था ना, अ नेगेटिव आयन, इट गोज़ टू एनोड, तो उल्टा जाएगा तो एनोड क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये दो तरीके हैं आपको इसके याद करने के। चलिए, सो नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट इज़ अ सब्सटेंस जहाँ पे जो कंडक्ट करता है इन देयर एक्वस सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट, दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, और उसके अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पास पॉजिटिव आयंस है और नेगेटिव आयंस हैं। अब चूंकि ये जो कैथोड है ये नेगेटिव चार्ज्ड है, नेगेटिवली चार्ज्ड है, और एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इस नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव आयंस अट्रैक्ट होंगे। ठीक है ना, पॉजिटिव आयंस विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड and negative ions will get attracted towards anode। तो कुछ इस तरह का सीन बन जाएगा, जितने भी पॉजिटिव आयंस हैं they will be towards cathode and the negative ions will be towards the anode। now these positive ions which have come to the cathode, ये यहाँ पे क्या होने के लिए आए, ये डिस्चार्ज होने के लिए आए हैं। ओके, they have come here to get discharged। now suppose हम NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन आपका Na+ आ गया, अगर इलेक्ट्रोलाइट हमने NaCl लिया था, और नेगेटिव आयन क्लोरीन आ गया। तो अभी जो सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन, ये इसके पास डिस्चार्ज होने आया है, यानी ये किस में कन्वर्ट होने आया है, ये Na में कन्वर्ट होने आया है। और Na+ से Na कब बनेगा, जब वो इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया था इस पॉजिटिव आयन को पाने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए, एज यू ऑल नो कि हाउ Na, जो न्यूट्रल Na है, वो Na+ कब बनेगा, जब वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, इलेक्ट्रॉन, तब वो Na+ बन जाएगा। अब Na+ से अगर उसको Na बनना है तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन करेगा। जैसे ही वो गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, वो Na बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या याद करवाया था मैंने, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, और एनोड पे क्या हो रहा है वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम कैथोड देखते हैं। तो कैथोड पे क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये सोडियम आयन जो है यहाँ पे जाएगा, और उसको डिस्चार्ज होने के लिए वो क्या करेगा, वो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। सो कैथोड विल गिव द इलेक्ट्रॉन, cathode will give the electron to sodium ion, and this sodium ion will convert as Na and gets deposited on cathode। तो पहले हम कैथोड वाली साइकिल को समझेंगे। कैथोड पे पॉजिटिव आयन आएगा, पॉजिटिव आयन आके कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने के बाद वो क्या करेगा, वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, सिंपल डिस्चार्ज होके बिना चार्ज के बन जाएगा। तो अब इलेक्ट्रॉन, कैथोड क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, सो कैथोड इज गिविंग द इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रोलाइट, एंड इसीलिए आपके बुक में लिखा हुआ है कि थ्रू
कैथोड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट. सो फ्रॉम कैथोड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट. अब इसका उल्टा होगा एनोड में. अब एनोड में क्या होगा वो भी देखते हैं हम. ये तो हमने देखा था अभी, इसमें इतना याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिग हो रहा है. ओके, नाउ क्लोरीन आयन आ गया यहाँ पे. अब क्लोरीन भी इसके पास एनोड के पास आया है और डिस्चार्ज होने आया है, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है. ओके, so this chlorine ion which is negatively charged will come to the anode and will lose its electron. अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा. लूज इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, बिकॉज ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन. और कैसे याद करेंगे उसको, उसको याद करेंगे रेड कैट. रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड और एनऑक्स, ऑक्सीडेशन एट एनोड. तो इस तरीके से हम ये याद करेंगे कि किस पे रिडक्शन होगा और किस पे ऑक्सीडेशन होगा. एक बार फिर से उसको समझा रही हूँ. ये क्लोरीन आयन जो नेगेटिवली चार्ज है, इट विल गेट अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल दैट इज एनोड. इट विल कम टू एनोड टू गेट डिस्चार्ज. To get discharge means to lose the electron and it will lose the electron to anode. Anode को अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, वो लूज कर देगा और बन जाएगा सिंपल Cl बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर दिए जा रहे हैं, जबकि यहाँ से एंटर कर रहे थे इलेक्ट्रॉन और यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट को लीव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन. तो इस तरीके से यहाँ पे से इलेक्ट्रोलाइट में से एनोड में एंटर कर रहा है इलेक्ट्रॉन. ऑलवेज रिमेंबर, आपकी बुक में देखिए लिखा हुआ है इसमें, द कैथोड बिकम्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट. एंटर्स द इलेक्ट्रोलाइट कैथोड से. एंड एनोड बिकम्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बाय विच इलेक्ट्रॉन लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट. So you will see that the flow of electron happens from the cathode. The electrons will go into the electrolyte and from the anode electrons leave the electrolyte. और ये जो movement of electron है, ये क्या बन जाता है, ये flow of current cause करता है. आपने पढ़ा है इसको कि flow of electron is flow of charge or flow of electricity. तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, electricity move करने लगेगी और इस तरीके से जो current है वो फ्लो करने लगेगा सर्किट में. Svante Arrhenius in 1807 gave a theory which is known as ionic theory. And so he said that an electrolyte on dissolving in water dissociates into free mobile ions, that is cations which are positive ions and anions which are negative ions, and these allows the flow of an electric current through it. Just now we have seen how current flows in a closed circuit here, because ions move and then flow of electron happens. All ions carry an electric charge and are responsible for the flow of current through the solution. And the conductivity of the electrolyte depends upon the concentration of the ions. जितना यहाँ पे इसका concentration जितना high रहेगा, उतना ज़्यादा उसका flow of current होता रहेगा. ठीक है. Then number of positive, ये बहुत important point है, इसको समझना है. The number of positive charge is always equal to the number of negative charge. इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में जो कैटायंस हैं और जो एनायंस हैं, उनका जो नंबर है वो हमेशा इक्वल रहेगा. ओके, यानी जितना पॉजिटिव आयंस इधर जाके डिस्चार्ज होंगे, उतने ही नेगेटिव आयंस इधर जाके डिस्चार्ज होंगे. तो ये याद रखना है कि द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन द सोल्यूशन. और इसलिए हमेशा यहाँ पे इक्विलिब्रियम रहेगा. इस वाले इलेक्ट्रोलाइट में हमेशा क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा. और इक्विलिब्रियम क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो हमेशा सेम रहेंगे. तो इक्विलिब्रियम में रहेगा हमेशा ये इलेक्ट्रोलाइट. In non-electrolytes such as sugar solution, benzene, etc., no ionization and therefore only molecules will be present. अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को शुगर सोल्यूशन ले लिया है तो वो हमेशा वहाँ पे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे आयंस नहीं बनेंगे. तो ये है मतलब आपका जो आर्हेनियस ने थ्योरी दी थी, आयनिक थ्योरी. लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि थोड़ा डिफरेंस आ गया है मॉडर्न थ्योरी में. आर्हेनियस ने बोला था कि वाटर जो है वो आयनाइज कर जाता है, इट आयनाइजेस इलेक्ट्रोलाइट्स,
लेकिन मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि इलेक्ट्रोलाइट्स आर आयनिक इवन इन सॉलिड स्टेट एंड देयर आयंस आर हेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच मेक्स देम इमोबाइल। वो कुछ इस तरह से उन्होंने बोला था कि उन्होंने क्या बोला था कि वाटर आयनाइजेशन करता है, जैसे कि NaCl है। ओके, नाउ NaCl में ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट हैं, लेकिन चूंकि इनके बीच का जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको जो वाटर है वो ब्रेक कर देता है, उसको ब्रेक कर देता है, और जिसकी वजह से ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब आयन फॉर्म में पहले भी थे, लेकिन इनको सेपरेट किसने किया? इनको सेपरेट किया वाटर ने। और वाटर ने कैसे सेपरेट किया? वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, अगर आपको याद हो वाटर चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो वो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से उसने जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे इन आयनिक फॉर्म, उसमें उनको बस उनको सेपरेट किया, उनको दूर दूर किया, उनको अलग किया है। तो ये बस इतना थोड़ा मॉडर्न थ्योरी से इनका जो है वो कॉन्सेप्ट अलग है। जैसे ही अलग अलग होते हैं तो मोबाइल आयंस हो जाते हैं। यहाँ पे ये इमोबाइल आयंस हैं, क्योंकि यहाँ पे ये फ्री नहीं है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इमोबाइल हैं, बंधे हुए हैं। एंड वन मोर थिंग कि जो कैटायंस हैं, कैटायन हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ले लिया सोडियम का, तो जो कैटायंस हैं दे विल गेट डिस्चार्ज एट कैथोड, तो उनका जो डिपॉजिट होगा वो किस पे होगा? कैथोड पे। तो अगर हम NaCl लें और NaCl को यहाँ पे ब्रेक करें, तो जो सोडियम है दैट विल बी डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड, तो सारे सोडियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे, और जितने भी क्लोरीन है वो यहाँ पे डिस्चार्ज होगी। तो अलग अलग टर्मिनल्स पे अलग अलग डिपोजिशन होगा, अलग अलग डिपॉजिट होंगे। जो कैटायंस है दे विल गेट डिपॉजिटेड एट कैथोड, एंड जो एनायंस हैं दैट विल गेट डिपॉजिटेड एट एनोड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं वो कैथोड पे जाके डिस्चार्ज होंगे, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तो अब अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव लें तो मेटल्स, तो सारे मेटल्स कहाँ पे डिस्चार्ज होंगे या कहाँ पे कलेक्ट होंगे? कैथोड पे। और जितने भी नॉन मेटल्स हैं, हाँ मेटल्स, जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पे कलेक्ट होंगे? वो कलेक्ट होंगे आपके एनोड पे। और हाइड्रोजन H+, ठीक है, H+ एंड मेटल्स विल डिपॉजिट एट कैथोड एंड नॉन मेटल्स विल डिपॉजिट एट एनोड। इसको दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव विल डिपॉजिट ऑन कैथोड और लिबरेटेड एट कैथोड, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव विल गेट लिबरेटेड एट। कितना मास कलेक्ट होगा कैथोड एनोड पे किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी आप पास करेंगे उस पर डिपेंड करता है। मोर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स मोर डिपोजिशन, मोर इलेक्ट्रिसिटी मीन्स द मास ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस विल बी मोर, और अगर लेस इलेक्ट्रिसिटी करेंगे तो लेस प्रोड्यूस होगा। ये क्या है? ये एक लॉ है जो किसने दिया है हमें? ये हमें दिया है फैराडेज ने। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस सेज दैट the mass of substance produced at the electrode during electrolysis is proportional to the quantity of electricity passing through the electrolyte, यानी जितना ज़्यादा आपने इलेक्ट्रिसिटी दी उतना मास डिपॉजिट हो गया। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाई इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा? बिकॉज electrovalent compounds are held, the ions are held by a very strong electrostatic force of attraction, तो इमोबाइल रहते हैं क्योंकि आयंस प्रेजेंट तो हैं बट दे आर इमोबाइल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जब हम उनको मोल्टन स्टेट में ले आते हैं या उनको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं बिटवीन देम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक कर जाता है और आयंस फ्री हो जाते हैं, एंड देन दे स्टार्ट मूविंग एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवेलेंट कंपाउंड का क्या होता है? कोवेलेंट कंपाउंड्स जो कि पोलर है, नॉन पोलर उनका कुछ नहीं होता है, वो दे डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट द कोवेलेंट कंपाउंड विच आर पोलर दे विल आयनाइज इन एक्वस सोल्यूशन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और ये इनका जो बीच का जो इनकी पोलैरिटी है वो कैसे आ जाती है? वो वाटर की वजह से आ जाती है। वो मैंने आपको समझाया था वाटर में भी कि कैसे जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो पॉजिटिव H को खींचेगी अपनी तरफ, और जो पॉजिटिव हाइड्रोजन है वाटर का वो क्लोरीन को अपनी तरफ खींचेगा। इनके ऊपर पार्शियल स्लाइटली पॉजिटिव
और स्लाइटली नेगेटिव पार्शियल चार्जेस आ जाएंगे एंड देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. तो रिडॉक्स रिएक्शन है कि यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ चलता है. वन थिंग इज ऑक्सीडाइज, अनदर थिंग इज रिड्यूस्ड. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फॉर एग्जाम्पल डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. अगर सोडियम क्लोराइड डिसोशिएट कर रहा है तो चलिए देखते हैं क्या होता है सोडियम क्लोराइड में. नाउ इफ सोडियम क्लोराइड इज डिसोशिएटिंग तो Na प्लस और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है, अब Na प्लस आयन किसकी तरफ जाएगा? Na प्लस आयन जाएगा कैट गोज टू कैट, कैथोड की तरफ जाएगा. और ये किसकी तरफ जाएगा? ये एनोड की तरफ जाएगा. एन गोज टू एन. अब यहाँ पे क्या होगा? मैंने बताया था रेड कैट मतलब रिडक्शन होगा, रिडक्शन हो जाएगा. और रिडक्शन हो जाएगा मतलब व्हाट इज रिडक्शन? ऑयल रिग है ना, ऑयल रिग यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम आयन विल gain an electron and will get discharged as sodium. ठीक है, रिडक्शन हो गया, गेन हो गया, रिग हो गया. इस तरीके से इसको याद करेंगे. रिग हो गया, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. सोडियम हैज गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड इज डिस्चार्ज. नाउ एनोड पे क्या हो रहा है? हाँ, तो क्लोरीन आयन जो है, क्लोरीन नेगेटिव आयन, वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा. ऑक्सीडेशन मतलब ऑयल है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जो Cl नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और डिस्चार्ज हो जाएगा एज क्लोरीन. और इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑयल, दैट इज़ ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन है. एक चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है और एक चीज़ रिड्यूस हो रही है. हमेशा ध्यान रखना कि AC करंट इज़ नॉट यूज्ड, क्योंकि वो केमिकल चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो अपना चेंज करता रहता है टर्मिनल. तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमेशा आप कौन सा करंट यूज़ करेंगे? यू विल ऑलवेज यूज़ डायरेक्ट करंट, यू विल नेवर यूज़ AC करंट. ओके, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में डिफरेंस है. मतलब एक ही है दोनों का, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है कि डिसोसिएशन क्या है और आयनाइजेशन क्या है. इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन मतलब इलेक्ट्रोलाइट है जहाँ पे आयंस फॉर्म हो रहे हैं. ओके, द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट इनटू आयंस, मतलब आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं. लेकिन कब होता है? जब वो फ्यूज स्टेट में, एक्वस स्टेट में आता है, तब उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड्स, अगर हम उसको सॉलिड लेते हैं तो वो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, अभी मैंने आपको पीछे समझाया था, और उसमें ऑलरेडी सोडियम और आयन प्रेजेंट हैं आयनिक फॉर्म में. लेकिन चूंकि इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा है कि वो आपस में बहुत ज़्यादा, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय अ ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे. ये रहा EC, दैट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये आयंस को सेपरेट नहीं होने देता, आपस में बांध के रखता है, अट्रैक्टेड रखना है. तो आयंस फ्री नहीं है इस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. इस फोर्स की वजह से आयंस फ्री नहीं है, जिसकी वजह से वो क्या नहीं करेंगे? कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी. ऑल्दो आयंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट, मतलब आयनिक कंपाउंड है ना, तो आयन से मिलके ही बना है. लेकिन सॉलिड में क्या हो रहा है? सॉलिड स्टेट में आयंस आर हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो इसलिए ये सॉलिड स्टेट में क्या नहीं कंडक्ट करेगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि आयंस मूव करने के लिए फ्री नहीं है. लेकिन अगर मैं इसी को मेल्ट कर दूं, NaCl को, या पानी में डिसॉल्व कर दूं, तो क्या होगा? तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जब हम इसको एक्वस स्टेट में ले आते हैं या मोल्टन स्टेट में ले आते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं कि एक्वस स्टेट में क्या होता है. एक्वस स्टेट मतलब होता है कि व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. जैसे ही हमने इसको डिसॉल्व किया वाटर में, तो क्या होगा? जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन एटम जो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज है वाटर का, वो पुल करेगा सोडियम को अपनी तरफ, और हाइड्रोजन जो है वो पुल करेगा क्लोरीन को अपनी तरफ, है ना. एंड दिस पुल एक्सर्टेड by this slightly positive and slightly negative of water will break the electrostatic force of attraction
एंड दस द आयंस विल बिकम फ्री इन सॉल्यूशन, और फिर फ्री आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक, ये जो ब्रेक करेगा इसको, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। ये तो हो गई एक्वस की बात, वहाँ पे वाटर ने रोल प्ले किया। लेकिन अगर मोल्टन स्टेट में आ जाए, मान लीजिए NaCl में पानी नहीं डालते हैं, सिर्फ उसको मेल्ट कर देते हैं हाई टेम्परेचर में, तो ये जो हाई टेम्परेचर है ये भी वही काम करेगा, ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देगा और ब्रेक अपार्ट कर देगा बॉन्ड को, और आयंस फ्री हो जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन फ्री होके अलग अलग मूव करने लगेंगे, और 10 फिर क्या होगा, जो आयंस सेट फ्री हो जाएंगे एंड मोबाइल आयंस हो जाएंगे, 10 दे विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक डिसोसिएशन, जहाँ पे ऑलरेडी जो कि आयंस फॉर्म में थे, जो आयनिक कंपाउंड थे जो ऑलरेडी आयंस से मिलके बनते थे, उनमें उनको आयंस में ब्रेक डाउन किया। तो अब आपको ये समझ में आना चाहिए, यहाँ पे ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट थे, तो फॉर्मेशन क्या हुई है, सेपरेशन ऑफ आयंस हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयंस नहीं हुआ है, सेपरेशन ऑफ आयंस हुआ है डिसोसिएशन में। तो आयंस वर ऑलरेडी प्रेजेंट बट दे वर ओनली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो कौन होंगे, कौन डिसोसिएशन शो करेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक कंपाउंड डिसोसिएशन शो करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट थे आयंस। एग्जाम्पल मैंने आपको NaCl का दे दिया, एग्जाम्पल आपको KCl ले लीजिए, और कोई आयनिक कंपाउंड ले लीजिए आप जहाँ पे आयन से मिलके बना है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट और गेन हुआ है, तो ये डिसोसिएशन हैपन्स ओनली इन आयनिक कंपाउंड्स। नाउ लेट्स सी व्हाट इज आयनाइजेशन। यहाँ पे आयंस बने नहीं थे, ओके, कोवेलेंट कंपाउंड की बात हो रही है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो मतलब आयंस तो थे ही नहीं पहले, है ना, मॉलिक्यूल्स ही थे वहाँ पे, लेकिन पोलर की बात हो रही है। और पोलर मैंने आपको बताया है कि पोलर कौन से होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्लाइटली नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज उन पे आ जाता है। और ये कब बनेगा, इसमें आयंस कब बनेंगे, ओनली व्हेन दे आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब आपने उनको वाटर में डिजॉल्व किया तो वाटर अपने हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से क्या करेगा, वो पुल करके उनको स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव में लाके उनमें आयंस क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल देखते हैं HCl, दैट इज हाइड्रोजन क्लोराइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसमें क्या है, ये स्लाइटली पॉजिटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव है ना, तो इस स्लाइटली पॉजिटिव और इस स्लाइटली नेगेटिव की वजह से वो क्या करने लगेगा, वो कंडक्ट करने लगेगा। जबकि गैशियस स्टेट में या प्योर लिक्विड स्टेट में HCl इज अनआयनाइज्ड एंड डज नॉट कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो गैशियस स्टेट में अपने और प्योर लिक्विड स्टेट में नहीं करेगा जब तक आप इसे पानी में नहीं डालेंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगी स्लाइटली पॉजिटिव और स्लाइटली नेगेटिव, क्योंकि पोलर कोवेलेंट है ना, नेचर में थोड़ा सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, वो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप उसको वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं जाके। तो इसकी वजह से क्या होगा, उन पे पोलैरिटी है, और इस पोलैरिटी की वजह से क्या होगा कि जब इसको वाटर में ऐड करेंगे तो वही होगा, जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन को अट्रैक्ट करेगा और वाटर का ऑक्सीजन जो है इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, और क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, जैसे आप इसको वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन एटम ऑफ वाटर विल एक्सर्ट पुल ऑन स्लाइटली पॉजिटिव ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ HCl, और इस तरीके से हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन्स बन जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या शुरू हो जाएगा, आपका कंडक्शन शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो चलिए कंपैरिजन देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी बता दिया, आयनाइजेशन मतलब पहले से आयन नहीं थे, फॉर्म हुए हैं। डिसोसिएशन में पहले से ही आयन थे, बस सेपरेट हुए हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स विच वर नॉट इनिशियली इन द आयनिक स्टेट। और यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ सेपरेशन ऑफ आयन्स हुआ है, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट थे, बस अलग अलग नहीं थे। Ionization happens in polar covalent. Please don't write covalent only, it is polar covalent. सिर्फ पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स आयनाइजेशन शो करते हैं, एग्जाम्पल ये रहे आपके। और ये जो डिसोसिएशन इट इज शोन बाय इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, एग्जाम्पल आपका पोटेशियम क्लोराइड, लेड ब्रोमाइड एक्सेट्रा। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन आयनाइजेशन एंड डिसोसिएशन।